जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस राम बहादुर थापा। नाइनटीन 59 सुप्रीम कोर्ट। लिखो, राम बहादुर थापा accompanying his employer, Ram Bahadur Thapa accompanying his employer, Ram Bahadur Thapa accompanying his employer to an abandoned aerodrome, to an abandoned aerodrome, accompanying his employer to an abandoned aerodrome, to an abandoned aerodrome near Rasgovindrapur, RAS Ras Govindpur in Odisha, near Rasgovindpur in Odisha, where local superstition, near Rasgovindpur in Odisha, where local superstition held that, where local superstition held that ghosts appear at night, where local superstition held that ghosts appear at night, रात में भूत आते हैं, भूत भूत की कहानियां फेमस रही होंगी वहां पे, ठीक है, कॉमा थापा से saw flickering lights and moving figures, Thapa saw flickering lights and moving figures, Thapa saw flickering lights and moving figures, believed they were ghosts, उसने ये मान लिया कि ये भूत हैं, believed they were ghosts and attacked them with खुरकी, KHURKI, खुरकी कोई वेपन होगा, KHURI, सॉरी KHUKRI, कुरकरी, ठीक है, खुरकी बोल रहा था मैं, कुरकरी, ठीक है, believed they were ghosts, attacked them with kurki. The figures were actually women gathering mahua flowers. The figure were actually women gathering mahua flower. असलियत तो ये थी, ठीक है. The figures were actually women gathering mahua flowers. One woman killed and several other injured. One woman killed and several other injured. Thapa charge under section 302 IPC. Thapa charged under section 302 IPC. 226, 326, 324 IPC. 326, 324 वही causing grievous hurt with dangerous weapon वाला चार्ज लग गया और 302 मर्डर वाला चार्ज लग गया था, ठीक है. causing charge under section 302, 326, 324 IPC, ठीक है. अब कोर्ट ने क्या लिखा, कोर्ट ने सॉरी क्या कहा ये याद रखो. कोर्ट accepted the fact that Thapa genuinely believed, court accepted the fact that Thapa genuinely believed he was attacking ghost. Court accepted the fact that Thapa genuinely believed he was attacking ghost rather than human being. He was attacking ghost rather than human being. ठीक है.
Court accepted the fact that Thapa genuinely believed he was attacking ghosts rather than human being. Thapa is entitled to defense under section 79 IPC. Thapa is entitled to defense under section 79 IPC. तो 79 था पहले ये, अब हो गया 14 BNS. पहले 79 IPC था. IPC पढ़ी है क्या तुम लोग ने पहले? वेरी गुड. ठीक है. Thapa is entitled to defense under section 79 IPC. The mere fact that had he exercised extra care and attention, the mere fact that had he exercised extra care and attention, the incident might have been averted. Is no ground to deny protection. The incident might have been averted. मतलब हटाया जा सकता था. The incident might have been averted. Is no ground to deny protection. Under section 79. Is no ground to deny protection under section 79. तो एक थापा वाला बता दिया तुमको केस. एक केस जो दूसरा बता रहे थे ना, जिसके पैर में चोट लगी थी, फीवर हुआ था, अपने बच्चे को मार देता है, वो अपने लड़के को मार देता है, उस केस का नाम है चिरांगी वर्सेस स्टेट 1952. चिरांगी, CHIRANGI, चिरांगी वर्सेस स्टेट 1952. लिखवाना है ये हो गया है सर. हाँ वो तो हो गया, थापा वाला केस हो गया. तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखवाया है खाली, कि तुम लोग जब पढ़ने बैठोगे तो ध्यान रखना कि हाँ ऐसे से ऐसा होता है. इस सेक्शन को समझने का तरीका ये भी है. ठीक है. चिरांगी वाला केस लिखवाना है? नहीं, चिरांगी वाला लिखवा देता हूँ, मैंने लिखवाया नहीं अभी. लिखवा दूँ? चिरांगी वाला केस था जो वो पहाड़ पे जाता है अपने लड़के के साथ, ठीक है, और उसको फीवर हुआ होता है, पैर में चोट लगी होती है इन्फेक्शन की वजह से, और उसका विजन, वो 45 ईयर्स का था, विडो था वो, विडोवर, तो उसके विजन की भी इशू होती है, और उसको भ्रम होता है, बुखार, विजन का इशू, कई चीज़ों की वजह से उसको जो एक भ्रम होता है, और वो अपने लड़के को मार देता है शेर समझ के. चिरांगी वो वाला केस है. चिरांगी लिखवा दूं? थापा हो गया, चिरांगी लिखवा दूं? खुशी लिखवा देता हूं. चलो. चिरांगी 45 ईयर ओल्ड विडोवर. चिरांगी 45 ईयर ओल्ड विडोवर. अच्छा, चिरांगी लिखवा चुका हूं मैं, लिखवा चुका हूं, नोट्स में है पुराने. ठीक है. चलो. एक ये केस मेरे को अच्छा लगा था कि मेरे को बताना चाहिए. ठीक है. प्रॉब्लम ये ना, इतना वाइड सिलेबस होता है ना, क्या बताएं क्या छोड़ें, बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है. और देख लेता हूं मैं फिर. बरेंद्र कुमार घोष मैंने बता दिया होगा सेक्शन 3 क्लॉज 5 पढ़ाते समय. पोस्ट मास्टर वाला केस, शंकरी टोला पोस्ट मास्टर केस, जिसमें मैंने बोला था कि 4 लोग अंदर चोरी करने जाते हैं और एक आदमी जो है वो बाहर बंदूक लिए खड़ा होता है. ठीक है. और पोस्ट मास्टर को लूटते हैं और उसको जान से मार देते हैं. तो जो बाहर खड़ा होता है उसके अगेंस्ट भी क्रिमिनल केस रजिस्टर हो जाता है मर्डर का. तो 5 लोग मर्डर के लिए लायबल होंगे कि नहीं होंगे? तो सेक्शन 3 क्लॉज 5 ऑफ दी BNS या फिर सेक्शन 34 ऑफ दी IPC, 34 ऑफ दी IPC कॉमन इंटेंशन की बात करता है. ठीक है. तो उस पे था ये केस. ठीक है. तो ये भी लिखवा दिया मैंने. ठीक है. ये भी तुम नोट्स में देखना. और एक केस मैंने लिखवाया होगा, वो भी तुम नोट्स में देखना, सेक्शन 69 पे, दीपक गुलाटी वाला. दीपक गुलाटी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा. सुन लो फैक्ट्स. लड़का लड़की होते हैं. दीपक गुलाटी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2013 का केस होगा ये. ठीक है. लड़का लड़की होते हैं और लड़का जो है वो बोलता है कि ठीक है मैं तुमसे प्यार करता हूँ. लड़की प्यार करते हैं एक दूसरे से. लड़का कहता है मैं तुमसे शादी करूंगा, और इस शादी के प्रेटेक्स्ट पे उसके साथ 2-3 बार या जितनी बार भी मुझे नहीं पता सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ उनका सेवरल पीरियड ऑफ टाइम, मतलब उनकी रिलेशनशिप लंबी चली थी. उसके बाद लड़का मना कर देता है कि शादी नहीं कर पाऊंगा किसी कारणवश,
और लड़की जो है उसके ऊपर रेप केस फाइल कर देती है। तो हमारे पास पहले इसको लेके कोई प्रोविजन नहीं था। नहीं नहीं, इसको बता रहे हैं अभी, तुमको बता चुके हैं, मुझे पता है, ठीक है। अभी निकेत को बता रहे हैं, 2 मिनट जरा। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रेलिवेंस क्या है। कंसेंट की क्वेश्चन उठता है कि भाई अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं तो आपको कंसेंट चाहिए ना विमेन की, कंसेंट के बिना तो आप नहीं कर सकते, नहीं तो वो रेप हो जाएगा। यहाँ पे वो कंसेंट तो लेता है लेकिन शादी के झांसे में, फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज पे वो कंसेंट ले रहा है, मान लीजिए। तो ये पहलू मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, तुम रिकॉर्डिंग देखोगे तो तुमको समझ में भी आएगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सिर्फ इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ सेक्शन 69 का। रेप का अगर तुम डेफिनेशन पढ़ते हो तो उसमें ये होता है कि आप फोर्स अगेंस्ट हिज विल, ठीक है, किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं आप, तो वो रेप होता है। यहाँ पे आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं कंसेंट लेके, लेकिन कंसेंट फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज पे है। हमारे पास कोई प्रोविजन नहीं था, सुप्रीम कोर्ट रेप के लिए लाइबल करता था। जब बीएनएस आई है तो उसमें सेक्शन 69 आ गया है और उसमें कहा है कि फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज पे अगर आप किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं और फिर आप शादी नहीं करते हैं, और आपने जब मैरिज का उसको बोला था, झांसा दिया था, तो आपका इंटेंशन नहीं था मैरिज करने का, और फिर आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, तो नाउ ये रेप तो नहीं है लेकिन ये पनिशेबल है अप टू 10 ईयर्स। और रेप की जो मिनिमम सजा है वो 10 साल है। रेप की मिनिमम सजा 10 साल है और यहाँ पे जो पनिशमेंट है अप टू 10 ईयर्स, मतलब 3-4 साल 5 साल की सजा भी मिल सकती है, ठीक है। तो मेरा ये बताना है आपको कि आप अगर इंटरकोर्स कर रहे हैं ये कह के कि आप शादी करेंगे, तो इसमें 2 पहलू हो सकते हैं। एक, आपकी नियत ही नहीं थी शादी करने की, तो वो हो जाएगा फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज पे, आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, आप सेक्शन 69 में लायबल हो जाएंगे। अब पहले रेप में लायबल होते थे, अब सेक्शन 69 में लायबल हो जाएंगे आप। आपने जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए कंसेंट ली तो आपका शादी करने का इंटेंशन था, आपकी नियत थी। लेटर ऑन आप शादी कर नहीं पाए, जैसे होता है ना, माँ बाप धमकी दे देते हैं कि दूसरी जात की लड़की है, या कोई भी रीजन बता के हम सुसाइड कर लेंगे, हम हमारे से अलग हो जाना। अब मान लीजिए लड़का नहीं रह सकता माँ बाप के बिना भी, तो उसने शादी के लिए मना कर दिया, लड़की ने उसके खिलाफ रेप केस कर दिया। तो यहाँ पे कोर्ट ये कह रहा है कि कंसेंट क्या जब ली गई थी उस समय उसका इंटेंशन नहीं था शादी करने का। अगर नहीं था, ये प्रूव हो जाए कि उसका इंटेंशन था ही नहीं, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग नॉट टू मैरी, तो वो रेप के लिए लायबल है। लेकिन अगर उसका शादी का इंटेंशन था और बाद में वो शादी नहीं कर पाया किसी और कारण से, देन दिस कैन नॉट बी अ रेप एंड दिस कैन नॉट बी एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 69 ऑल्सो। तो वहां पे एक्विटल हो जाता है। तो इस सेंस में सेक्शन 69 हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी तरह सेक्शन 74 जो भी हम पढ़ रहे थे यहाँ पे, रूपन देव बजाज का एक केस है वर्सेस केपीएस गिल। रूपन देव बजाज वर्सेस केपीएस गिल का केस था। करा चुके हैं, मुझे बताया खुशी, ये भी करा चुके हैं। तो उस केस में क्या होता है, 4:30 तक क्लास है ना अपनी। सेक्सुअल वो सॉरी assault or criminal force with intent to outrage the modesty of a woman। तो outrage the modesty of a woman को लेके ये केस था, ठीक है। तो इसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया टॉपिक और मैंने ये केस कराया, तो ये दोनों चीजें तुम लोग को याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन में सेक्शन 74 और 79 दोनों करना है। और मैंने बताया कि 74 में आप मॉडेस्टी को आउटरेज करने के लिए फिजिकल टच, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब 79 की बात आती है तो कुछ आप ऐसा बोलते हैं, कोई आपका ऐसा जेस्चर होता है जिसकी वजह से विमेन की मॉडेस्टी आउटरेज हो जाती है, तो सेक्शन 79 है, अदरवाइज सेक्शन 74 है। तो आपने जैसे गलत तरीके से किसी विमेन को टच कर लिया तो यू विल बी लायबल अंडर सेक्शन 74। आपने कोई अभद्र भाषा का प्रयोग कर दिया, कुछ गंदा बोल दिया, कोई ऐसे गंदे जेस्चर्स कर दिए वुमेन को देख के, फीमेल को देख के, तो वो 79 में होगा। बट दोनों ही बात करते हैं आउटरेजिंग द मॉडेस्टी की, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। फिर अगर याद हो तुम लोगों को, अनसाउंडनेस भी मैंने कराया है डिटेल में, तो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड सेक्शन 22 जरूर देख लेना। मतलब ये वो सेक्शन बता रहे हैं जहां से क्वेश्चन बनने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, जिन टॉपिक से। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, पागल पर के दौरे में तुमने जो कुछ भी किया, तुम्हें अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का डिफेंस मिल जाएगा, ठीक है।
Subscribe for more content.